आजा मेरा बच्चा। ओह लव यू टू आंटी। নমস্কার। দেখুন আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি আর আজকে আবার সঙ্গে আছে সারিউ। সারিউর সম্বন্ধে আমি একটু আপনাদের বলে দিই, আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। ও আমার কাছে শিখতে শুরু করেছে তখন ওর বয়স ছিল 3.5 বছর, আর আজকে দেখুন ও কত বড় হয়ে গেছে। চলুন ওর সঙ্গে কথা বলি, তাহলে আপনারা পুরোটা বুঝতে পারবেন। আচ্ছা সারিউ, तुम थोड़ा बताओ तुम्हारा एकदम शुरू का क्या मेमोरी क्या है? आंटी मुझे तो पहले सिर्फ ये याद है कि मैं क्लास में आती थी, आपके गोद में बैठती थी और डांस क्लास देखती थी। आई डोंट नो, बहुत सारे साल तो मुझे बस ये एक मेमोरी है। फिर आप बहुत सारा मुझे प्यार करके फिर कहते थे कि जाओ थोड़ा सा बेयर कर लो। तू लिटरली ऐसे ब्लैकमेल करती थी मुझे कि अच्छा करना है, थोड़ा सा कर लो, फिर आप गोदी में लोगे ना, फिर जाके 1 2 थोड़ा क्या, और फिर लिटरली हाथ ऐसे करके गोदी, फिर आके यहाँ बैठती थी। और मुझे अपना आपका प्यार भी मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि एक और लड़की भी आती थी, वो भी काफी छोटी थी। तो फिर आई फेल्ट कम्पिटिटिव कि नहीं सिर्फ मेरी दिस इज ओनली फॉर मी। तो फिर थोड़ा सा वन अपमैनशिप चलता था। दिस इज समथिंग माय मदर हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन, एंड सो आई थैंक माय मदर फॉर ऑलवेज encouraging me towards dance. And then I thank this mother for teaching me how to dance. So but I think she always felt like वो environment में रहना is as important as is actually learning the craft. So jitni, that was her belief, however young, but just be in that environment and you never know what you learn. So exactly. আচ্ছা একটু আপনাদের বলি, ও যখন ছোটবেলায় কি করতো বললো, ও নাচতো, মানে আমাকে ব্ল্যাকমেল করে একটু নাচতো, নেচে বলতো কোলে উঠতো। আমি ওর মাকে বলেছিলাম যে দেখুন ও কিছু করছে না, আমার কোলে বসে থাকে, সো বেটার ওকে পাঠিও না, একটু বড় হোক। তো ওর মা পরের দিন এসে বললো যে না, ওকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ও কিছুতেই শুনছে না, ও বলছে যে না আমাকে আন্টির কাছে যেতেই হবে। আচ্ছা আরেকটা যেটা আমি বলছি, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেটা ওর সাথে আমি কথা বলবো, তাও আপনাদের একটু বলি। ও যখন ক্লাস 12-এ পড়ে তখন ও রঙ্গমঞ্চ প্রবেশ করবে, কারণ ও তারপরেই বিদেশ চলে যাবে। তো তখন তারপরে সময় হবে কি হবে না, সেই হিসেবে ছিল যে 12 আর ওটা একসঙ্গে করতে হবে। মানে 6 মাস ও শুধু পড়াশোনা আর নাচ, এর বাইরে কিছু করেনি, আর ভীষণ মেহনত করেছে। চলুন ওর সাথে কথা বলে দেখি। अच्छा वो पीरियड का थोड़ा सा बताओ एक्सपीरियंस, रंगमंच प्रवेश। I think it was the most transformative thing that happened to me in my life, क्योंकि बहुत मुश्किल था, बहुत मेहनत लगी, पर आपका साथ था, तो आपका आशीर्वाद था, तो हो गया। I hope I at least lived up to some of your expectations, if not all of them. But I think it really taught me not just the fact that the beauty of a performance, but वो शिद्दत से when you work towards something, and the discipline and how discipline can change you as a person. I think that's what I experienced, and I think dance is so beautiful. I mean, it's beautiful to watch, but it changes your mind, it changes the way you approach work, it teaches you how to work consistently towards something. And when I started off in the first day one, in fact now I feel like we should have done day one and then T-1 day, because the journey was so massive, because I was nowhere close to ready to even dance in front of 5 people, forget 200 people. So to and also accept that, I think वो भी मैंने सीखा कि to truly grow आपको ये भी accept करना होता है कि आप truly कहाँ पे हो, आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो, because only then can you build and improve and learn. So I think थोड़ा सा मेरा ईगो भी खत्म हो गया उसमें। नहीं लेकिन बहुत मेहनत किया तुमने, वो तो मानना ही पड़ेगा। मतलब 12th के पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना, और जिस तरह से उस टाइम में मैं ऐसा नहीं थी कि बहुत स्ट्रिक्ट थी है ना, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी, पर डेफिनेटली एक लाइन तो था
कि नहीं इतना तो करना ही है, इतना तो करना I है। would say आंटी आपने वो स्टैंडर्ड रखा and thank God for that, you know, otherwise I wouldn't have realized how much I could have stretched. नहीं, और एट द सेम टाइम ये भी बोलना है, जो भी मैं बोलती थी ना वो एकदम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने उसको बोला अभी डांस किया ना, तुमको जूस पीना है पर ठंडा नहीं, बाहर से पियो, और वो सुनती थी। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे ठंडा ही पीना है, इतना गर्मी है मैं तो नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि आप देना चाहते हो पर लेने वाले भी वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। कितने साल हुआ बाहर रहते हो? 8 साल हो गए आंटी। 8 साल? लगता है अभी की बात है ना? Exactly, अभी ऐसा लगा कि अभी शो खत्म हुआ और फिर मैं गई, क्योंकि बस कुछ महीनों का। पर तुम वहाँ अकेली रहती हो? जी आंटी, तो मैं तो अकेली। थोड़ा ये भी बताओ आजकल के लड़कियों को कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली हमारे इंडिया में शायद थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, फिर भी मुंबई इज काफी मतलब सेफर है, हम लोग बाहर जाते हैं काफी रात तक, बट स्टिल थोड़ा सा हिम्मत करो एंड कॉन्फिडेंस रखो। तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये भी बताओ तुम्हारा थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं गुरु मतलब ऐसा नहीं कि खाली डांस के बारे में हम करते, पूरा लाइफ का फिलोसॉफी क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं हर एक बच्चे को ना सब कुछ में मैं घुस जाती हूँ। बच्चे के पढ़ाई में, बच्चे के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, हर एक चीज में। तो वो बहुत जरूरी है, अच्छा गुरु होने के लिए ना वो बॉन्डिंग भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप बताओ, आजकल मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बताओ, बाकी बच्चों के लिए भी, कि ये 8 साल का जो एक्सपीरियंस है तुम्हारा वो थोड़ा बताओ, स्टूडेंट लाइफ का भी बताओ और अभी जो जॉब कर रही हो दोनों का थोड़ा सा बताओ। तो आई थिंक ओवरऑल टू सम इट अप, आई फील एक होता है कि जब हम बाहर जाते हैं अकेले रहते हैं, वो इनिशियली लगता है बहुत फ्रीडम मिलता है और वो मिलता है, बट with that there's a lot of accountability that comes, there's a lot of responsibility, and ऐसा you learn to be responsible for yourself, and I think that has been the overall journey of the last 8 years. और पढ़ाई के वक्त तो जब मैं गई थी I was 18, so I was just after 12th I went, so it was very different adapting to a new culture, दोस्त बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम होम, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं वीकेंड्स पे घर जा सकती हूँ। तो ऐसे जगह पे गए हो शायद जहाँ का कल्चर टोटली ऐसे है ना, बहुत फर्क है, वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है, एंड सो अगेन इट्स अ मिक्स, राइट, क्योंकि बहुत अलग है from what I was used to, but again because of Canada is such a place where हर जगह से लोग आते हैं, तो also you get to learn how different people live their lives, values क्या होते हैं दूसरों के, and how they look at living their lives. So वो मेरे लिए बहुत enriching था, क्योंकि और वो actually वो मेरे लिए बहुत I was looking forward to it, क्योंकि मुझे सीखना था दूसरों के differences से और दूसरों के बारे में, दूसरों के cultures के बारे में। तो I think studying वो इनिशियल फेज वाज मोर कि अपने आप को कैसे संभाल रहे हो, अपने आप का देखभाल कैसे कर रहे हो, हाउ यू स्टडीइंग, हाउ यू मैनेजिंग मिसिंग होम, व्हिच इज अ बिग पार्ट ऑफ अंडरग्रेड. And then after that, and then getting grades was always important, and I think Auntie has been with me right through any big exam. I would message her saying, Auntie, exam hai, please bless kar do. Auntie, bada interview hai, please bless kar do. So like she said, a guru, it transcends even dance for us. It's a lot more, many more things. लाइफ में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख गए ना तो सब कुछ कर सकते हो। अभी आपकी लाइफ है, सब कुछ करो, मस्ती भी करो, है ना, फ्रेंडशिप भी करो, एंजॉय करो, काम करो, सीरियस हो जाओ, स्टडी करो, जॉब, सब कुछ करो। तो वो अगर एक बार आप सीख गए ना तो। और आंटी आपने बहुत बचपन से मुझे कहा है ये कि दिन में 24 आवर्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त होता है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट वाइजली। और वो आपका जो ओवरऑल गोल है वो भी आपने मुझसे कहा था जब मैं जा रही थी कि वो मत भूलना कि तुम क्यों जा रही हो, you're giving up so much, right. And there are a lot of sacrifices you make, your loved ones make, my parents made for example, so it has to be worth it, make it worth it. So I think वो लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है. Just keep your loved ones, your guru close, exactly. It acts like a seat belt in times of turbulence. क्योंकि तुम भी जब चले गए कनाडा, यहाँ से I don't know exactly कितने किलोमीटर्स अवे है इंडिया से. It's about 18 hours. 18 hours. वही तो वो किलोमीटर मेजरमेंट मुझे भी exactly नहीं मालूम. पर हमारा बॉन्डिंग, हमारा कनेक्शन कभी भी बंद नहीं हुआ। तो ऑनलाइन सीखते भी हो,
एंड उसके बाद जब भी कुछ होता है हम बात करते हैं, जैसे अभी वो जैसे ही 3 साल नहीं आई तो हम बहुत मिस कर रहे थे, तो आज इसलिए आके और भी खुश हो गए ये कि हम 3 साल मिले नहीं। पहले ही उसने फोन करके बोला कि आंटी मैं आ गई, तो वो जो बात जो है कि मैं आ गई बॉम्बे, आंटी मैं आ गई, तो उसी में पता चलता है कि आप डेफिनेटली मिस तो करोगे और कोई ऑप्शन नहीं था आपको आने का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था जो हुआ। तो फिर ये जो है ऐसा नहीं लगा कि जाने दो नहीं जा रहे हैं और 5 साल नहीं जाओ क्या फर्क पड़ता है, ये बच्चे बाद में जाके प्रॉब्लम में ऐसे जो बच्चे एक्चुअली जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका रूट नहीं भूलना है, रूट अगर आप भूल गए ना तो फिर ऊपर तो हिलता रहता है, तो वो जरूरी नहीं है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऊपर तो डेकोरेशन अपने आप होता जाता है, तो उसका तो टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन सरयू एक तो रीनी को हम बहुत मिस कर रहे हैं, मुझे भी बहुत याद आ रही है कि तुम भी तो बचपन से इसे देखा है, बहुत से देखा है, इवन तुम जब प्रैक्टिस करते थे वो यहाँ बैठी रहती यहाँ बैठी थी, एंड जब आंटी मुझे थोड़ा बहुत डांट देती थी तब वो आके मेरे पास बैठती थी, एंड हाँ तुमको कंसोल कर she would like put her paw on me and say it's okay, then she'd go to her and say don't shout at her. पर रीनी जैसे मतलब मैंने देखा ही नहीं, इतना अच्छा बच्चा थी वो, पर ठीक है उसका बहुत अच्छे से वो अपना लाइफ I think she was very lucky to have a very loving home, and I think we were very lucky to receive her love. And I feel very blessed to have been at the receiving end of her mission. बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, पर अभी तो 1 महीना हुआ, बट स्टिल ऐसा लग रहा है वो तो हमेशा रहेगी हमारे साथ, और याद तो आती रहेगी, वो तो है ही, but she is that special, right? So anyway, चलो बहुत अच्छा I have लगा। something for you. ओह really? हाँ मुझे मेरे बच्चे जब कुछ देते हैं ना मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा हक है, मेरे बच्चे मुझे प्यार से दे रहे हैं। ओहो और अच्छे से रैप नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस। देखो ये ऊपर का रैप या अंदर का ये क्या है, ये नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ये जो तुम मुझे दे रहे हो एक्चुअली तुम्हारा प्यार है, मेरा प्यार है जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, इसलिए ना ये रैप मैटर करता है ना अंदर में क्या मैटर करता है। फिर भी मैं खोल के सबके ऊपर दिखा देती हूँ। Oh wow! I wanted to give you something different, so nice. I always try and give her different sarees. Wow, very nice, very nice. It's really nice. It's a very traditional South Indian silk. Yes. So I thought I'd And you know, सारी जितने भी साड़ी जो तुम अभी बोल रही थी, तो उनसे मुझे जितने भी साड़ी मिला, तुम ध्यान दिया होगा, वो मैं बहुत इनिशियली मैं थोड़ा सा चूजी भी थी, ये कलर मैं नहीं पहनती हूँ, अरे सरयू इतना, इवन मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही ये कलर, तो उन्होंने जानते ने कहा नहीं आप पहन ही ना, अच्छा लगे, तो ये भी रहता है आंटी आप ये साड़ी पहन के मुझे फोटो भेजना, आप कहाँ जा रहे हो वीडियो भेजना, एंड जब कोई प्रोग्राम में या कहीं उसको दिखता है कि मैं साड़ी पहन, तो एकदम से उसका मैसेज आ जाता है, आंटी कल का वीडियो में जो साड़ी था तो वो बहुत एकदम बहुत अच्छा लगता है। And I feel honored if she chooses one of them for Durga Puja. That's my ultimate. That's where I'm like, okay, it's made it. हमेशा कहती हूँ मेरी बायोलॉजिकली तो एक ही बेटी है, पर ये लोग उससे किसी एंगल से कम नहीं है, एंड क्लास में तुम भी मानोगे कि कभी भी अगर खड़े हो जाए कोई बाहर वाले आए, किसी को पता नहीं चलेगा इसमें से कौन मेरी बेटी है और कौन मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि मैं जब क्लास में खड़ी हो जाती हूँ तब मैं ओनली गुरु, सब मेरे स्टूडेंट हैं, और जब आउट ऑफ द क्लास हम बैठते हैं ना मस्ती के लिए तब सब मेरी बेटियां। तो ये बात अगर आप मान के चले तो दुनिया में प्यार बांटो, आजकल तो जमाना इतना खराब है, प्यार मिलता नहीं, लोग स्माइल करने में भी सोचते हैं कि बात करें, स्माइल करें, स्पेशली इन मुंबई। बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Aarti. It's so nice seeing you. And you know what she said about this relationship of Guru Shishya, I think, and I think even life in general, आप जितना
you're only as worthy of it as you're willing to give. So आप जितना दूसरों को दोगे आपको उतना मिलेगा. उससे ज्यादा मिल जाता है. And आप जब दे रहे हो, don't do it with the expectation of receiving something in return. I mean, Gita also teaches us the same thing. तो एक्सपेक्टेशन कहीं भी पूरा लाइफ में, ऐसा नहीं कि हमारे फील्ड में आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना तो आपको खुशी बहुत ज्यादा मिलती है. और दिल से करो, don't do it for the sake of. और फिर मत करो. Yeah, exactly. दिखावे के लिए करना जरूरी नहीं है. फिर मत करो, कोई जरूरी नहीं है. आपके लिए कोई बैठे नहीं है, उनका लाइफ चलेगा आपके बगैर में. Exactly. किसी के लिए कुछ नहीं रुकता है. खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा. आज इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलूंगी. सभी बाय कर दो सबको. Bye everyone. Thank you so much. जल्दी जल्दी में मे बी एक साल बाद फिर मिलेंगे हम. हाँ ठीक है. God willing एक साल बाद आऊंगी. আচ্ছা দেখুন, অনেক কথা হলো, আমার মনে হয় আপনারা সব বুঝতেও পেরেছেন. তো আমার তো ভীষণ ভালো লাগলো. ও মোটামুটি বছরে একবার আসে, বাট এখন এই প্রবলেমের জন্য এটা 3 বছর পরে এলো. আদারওয়াইজ প্রত্যেক বছর একবার আমাদের দেখা হয়. অ্যান্ড দেখা বছরে একবার হয়তো হয় ফিজিক্যালি, বাট আমরা কানেক্টেড থাকি পুরো বছর. অ্যান্ড ওরা বাংলাও বোঝে. ওরা অ্যাকচুয়ালি এত ছোট থেকে আমার সঙ্গে থেকে থেকে বড় হয়েছে. ওরা বাংলা পুরো বাংলা বুঝতে পারে. বলতে হয়তো পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে যে আমি কি বলছি. তো এই কানেকশনটা মানে আমার মনে করি আমি যে ভীষণ ভালো. আমার বাচ্চারা এত ভালো, আর ওর সাথে আমার যে কানেকশনটা আছে, ও এত বছর বিদেশে, কিন্তু মনেই হয় না যে ওর সাথে আমার এতটা দূরত্ব হয়েছে. তো সেই জন্য ভীষণ এনজয় করি ও যখন আসে, এবং মানে ঠিক এগুলো ভাষায় বোঝানো যাবে না, একটা ফিলিংসের ব্যাপার. আর সত্যি ভগবানের কাছে প্রে করি আমার সব বাচ্চা খুব ভালো থাকুক, ওদের জীবন খুব ভালো হোক. খুব ভালো লাগলো ওর সঙ্গে কথা বলে. আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগলো. খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে. আজ এই অবধি, চলো বাই. Bye.